بے نامی جائیداد رکھنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، وزیر اعظم نے کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنرز اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو بے نامی اور مشکوک جائیدادوں کی نشاندہی کا ٹاسک، تمام افسران کو 30 ستمبر تک رپورٹ، چیئرمین FBR کو بھجوانے کی ڈیڈ لائن، وزیر اعظم آفس نے مراسلہ جاری کر دیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹا آپریشن کر سکتا ہے، بھارتی اقدامات سے کشمیریوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، وزیر اعظم نے عالمی برادری کو متنبہ کر دیا۔ جرمن چانسلر اینگیلا مرکل سے بھی رابطہ، بھارتی جاری حد سے آگاہ کیا، کہا مودی کو مقبوضہ وادی میں نسل کشی سے روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی پارٹی ترجمانوں کو بھی مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ہدایت۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی کی مکاری اور ریاستی دہشت گردی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کمشنر کو خط، مقبوضہ کشمیر کی مخدوش صورتحال اور بھارت کی یک طرفہ اقدام کے نتائج سے آگاہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام اقوام متحدہ چارٹر کی کھلی خلاف ورزی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض مودی حکومت نے نہتے کشمیریوں کا احتجاج کو چلنے کے لیے وادی کی ناکہ بندی کر دی۔ سورا میں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے، بھارتی فوج نے پیلٹ گن اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے، متعدد کشمیری زخمی، نوجوانوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، نماز جمعہ کی بھی اجازت نہ ملی، کرفیو کا 19واں دن، وادی میں خوراک اور ادویات تک بھی رسائی نہیں دی گئی۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، بھارت نے جنگ کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی آج نیوز کے پروگرام G4 غریدہ میں گفتگو۔ رہنما نون لیگ محمد زبیر کہتے ہیں کشمیر کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پوری قوم یک زبان۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ریلی، سکھ اور مسیحی رہنماؤں کا کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہنے کا عزم، ملی نغمے پیش کر کے کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ جنگ بھارت نے شروع کی، ختم ہم کریں گے۔ اگر آزاد کشمیر کی بات کی تو بھارتی فوج کا قبرستان بنا دیں گے۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا اسلام آباد میں کشمیر یکجہتی ریلی سے خطاب، کہا بھارتی فوج نے کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، ہم بھارت کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی بھارتی کوششیں ناکام، FATF ایشیا پیسیفک گروپ کے اعلامیے میں پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کا مطالبہ، کہا ہندوستان میں حکومت انتہا پسندوں کے حوالے کر دی گئی۔ بھارت کی آبی جارحیت سے دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند، ہیڈ سلمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، کئی آبادیاں زیر آب، فصلیں تباہ، دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ، سیلابی ریلے سے خانپور کی درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل میں دائر تمام درخواستیں خارج کر دی، معاملے پر کمیشن تشکیل دینے کی استدعا بھی مسترد۔ جج ارشد ملک کی مکروہ حرکتوں سے ایماندار ججز کے سر شرم سے جھک گئے، ان کا طرز عمل عدلیہ کے لیے بدنما داغ ہے۔ جج کا بیان حرفی تلخ حقیقت اور ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا UN جنرل اسمبلی سے واپسی پر 29 ستمبر کو سعودی عرب میں 2 روزہ قیام کا فیصلہ، وزیر اعظم شاہ سلمان اور محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ کراچی میں صفائی سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، میئر کراچی سمیت بلدیاتی اداروں کے حکام کی شرکت،
वसीम अख्तर ने शहर की सूरत हाल से आगाह किया। वफाकी वजीर फैसल वाडा की सिंध हुकूमत के साथ बैठक, सिंध बैराज बनाने पर इत्तेफाक। फैसल वाडा का पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब का वफाकी वजीर की काविशों का खैर मकदम। आज कराची के शहरी खौफजदा हैं, राहजनों से भी, मुहाफिजों से भी। कराची क्या से क्या, कराची का हर मसला, कराची की हर खबर आज दिखाएगा, आज बताएगा, आज कराची की आवाज। बहुत जल्द आप देख सकेंगे सिर्फ आज न्यूज पर। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया आईन मुअत्तल कर दिया। नया आईन गैर जमहूरी और जमहूरी क़ुव्वतों को महदूद करता है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। नया आईन 19 अगस्त को नाफिज हुआ था। और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि हुकूमत का मुल्क भर में बेनामी जायदादों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर के डिप्टी कमिश्नर्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सरबराहों को अहम टास्क सौंप दिया। हुकूमती मरासले के मुताबिक तमाम अफसरान 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट चेयरमैन FBI को भिजवाने के पाबंद है, जबकि इस रिपोर्ट की कॉपी वजीर आजम ऑफिस को इरसाल करनी है। वजीर आजम का कहना था कि बेनामी जायदादों की निशानदही के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। अब जिक्र भारत की आबी जारियत का, जिससे पाकिस्तान के दरियाओं में तुग़यानी आई हुई है। गंडा सिंध वाला के कई देहात डूब गए हैं। सिंध में भी कई मकामात पर निचले दर्जे के सैलाब से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मानसून बारिशों और बहारत की जानिब से छोड़े गए दरिया सतलुज के पानी ने गंडा सिंह वाला के कई देहात डुबो दिए। तबाही मचाने के बाद पानी की सतह में अब कमी आना शुरू हो गई है, जहां पानी का इखराज अब 49,460 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के बाद हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 56,161 क्यूसिक है। सैलाबी रेले के बायस उकाड़ा की मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गयी और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर 4,30,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी से खानपुर की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आने से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। सिंध में बारिश और सैलाबी पानी को जखीरा करने के लिए अहम पेशरफ्त, दरिया सिंध में बैराज बनाने का फैसला कर लिया गया। सिंध वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पानी की किल्लत दूर होगी। सूबे के लिए सिंध बैराज बनेगा। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा ने वजीर आला सिंध से मुलाकात की, मंसूबे की तफसील भी बताई। उस पार्टी की हुकूमत है जो सिंध की नुमाइंदगी कर रही है। कॉन्सेप्ट के अंदर इसका नाम सिंध बैराज की है। उस फिजिबिलिटी स्टडीज के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट तकरीबन उम्मीद करते हैं कि 4-4.5 साल में कंप्लीट हो जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने मंसूबे को पाकिस्तान के लिए खुशाइन करार दिया। फैसल वाडा साहब की और चेयरमैन वावडा के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ ये जो कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलने का अमल है, इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इनका कहना था मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत वफाक के साथ खड़ी है। कराची को कचरे से पाक करने के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। वजीर आला हाउस में लगी बैठक में सब एक पेश पर आ गए। कराची कैसे साफ करें, कचरा किस तरह उठाएं, शहर के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला हाउस में बैठक लगाई। मुराद अली शाह बोले, फंड्स दे रहा हूँ, इंतजामी मदद कर रहा हूँ, फिर भी कचरा साफ नहीं हो रहा। सूबाई वज़ीर बल्दियात और मुशीर कानून ने मीटिंग के फैसलों से आगाह किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी फराख दिली से उन्हें कहा है कि जो जो सपोर्ट उन्हें चाहिए वो उन सब इदारों को मुहैया की जाएगी। फौरी तौर पर उन इलाकों में से पानी निकाला जाए ताकि उन शहरियों की इस जो एक मुश्किल है वो आसान हो। मेयर कराची ने मिलजुल कर मसाइल हल करने का अज़्म जाहिर किया। कराची का बुरा हाल है, एक्सेप्टेड बाय सीएम। सीवरेज का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, कचरे का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। सीएम साहब का कंसर्न था, हम सीएम साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। उन्होंने सीरियसली सबको सुना, सारे इश्यूज सुने। रहनुमाओं का कहना था कि कचरा साफ करने के बाद जल्द शहर में फ्यूमिगेशन भी करेंगे।
कराची क्या से क्या हो गया, कराची का हर मसला, कराची की हर खबर आज दिखाएगा, आज बताएगा। आज कराची की आवाज बहुत जल्द आप से देख सकेंगे सिर्फ आज न्यूज पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पानी नायाब, गंदगी, सीवरेज, अनगिनत मसाइल, इंतजामिया की गफलत। रोशनियों का शहर कराची हो गया बर्बाद। किसने किया बर्बाद, ये बताएगा आज। कराची का हर मसला, अवाम का हर मुतालबा, कराची दिखाएगा, कराची बताएगा। एक तरफ सकाफत और अदबी महफिलों के गहरे रंग, तो दूसरी जानिब समाजी मसाइल के अंबार। कराची के शोबा सेहत में वसाइल महदूद और मसाइल का अंबार। कराची का निज़ाम तालीम ज़वाल पजीर क्यों, तुलबा और असातिज़ा के मसाइल क्या हैं। बड़े शहर के बड़े मसाइल और उनका हल, कराची क्यों बना कचरा जी, हम बताएंगे सिर्फ आज न्यूज पर। अब लगेगी खोज कराची में होने वाले जुर्म की हर कहानी पर, जैसे आज दिखाएगा, आज बताएगा। रियासत माँ होती है और रियासती इदारे तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन, लेकिन कराची के शहरी खौफज़दा हैं, राहज़नों से भी, मुहाफ़िज़ों से भी। कराची में गंदगी से अवाम का बुरा हाल है। हर इलाके में सीवरेज का पानी खड़ा है। अवाम इंतजामिया से शिकायतें करके थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कराची का इलाका रंछोड़ लाइन, यहाँ सड़कें बनी हुई हैं गटर लाइन। सीवरेज के पानी ने सड़कों का ही बेड़ा गर्क नहीं किया, मकीनों के लिए सांस लेना भी मुश्किल बना दिया। छोटे मासूम बच्चे जाते हैं, औरतें जाती हैं, लेडीज जाती हैं, और ये रिक्शे वाले खड़े होते हैं। ट्रैफिक का पार करने का रास्ता नहीं होता। पानी आ रहा है, बच्चे जा रहे हैं रोडों पे, बहुत ढंगाई हो रही है। गटर भरा हुआ है, इतने दिनों तो कोई देख नहीं रहा है। रोड बना दिया है, मैं बोलता हूँ पहले रोड बनाने से पहले गटर को सही करो। सफाई करने वाले और वोट लेने वाले दोनों ही गायब हैं। ये हमारी सिंध हुकूमत की मेहरबानी है हमारे के ऊपर, और ये जरदारी साहब और बिलावल साहब की मेहरबानी है, जो आज वो खुद आराम से बैठे हैं और हम ये हाल देखें आप हमारा। गंदे पानी के बाइस ट्रैफिक जैम भी रोज का मामूल बन चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में जाली ऑपरेशन का खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। इमरान खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा, कश्मीर में जुल्म से तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई भी हथकंडा अपना सकता है। वजीर आजम ने अफगानिस्तान से दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने के भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को भी मुस्तरद कर दिया। लिखा, भारत के झूठे दावे मुतवक्का थे, ये नस्ल कुशी पर पर्दा डालने की कोशिश है। वजीर आजम ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को भी कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय इक़दामात से आगाह किया। बताया, भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला मुखालफत कर रहा है। भारतीय इक़दामात से कश्मीरियों की जानें ज़ाया हो रही हैं। भारत को हर कीमत पर इन इक़दामात से रोकना होगा। वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों को भी मसले कश्मीर आलमी सतह पर उजागर करने की हिदायत कर दी। मकबूजा वादी में मोदी सरकार के इक़दाम से जिंदगी सिसक रही है। सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर को खत लिखकर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह कर दिया। मकबूजा वादी में सिसकती जिंदगी, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमिश्नर को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने UN हाई कमिश्नर के नाम खत लिखा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मखदूश सूरत हाल से आगाह किया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक खत में बताया गया, मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। खत में भारत की एकतरफा इक़दाम के नताइज से भी आगाह किया गया। भारत के जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों में आज़ादी का जज्बा कम न हुआ। वादी में मुसलसल 19 रोज से कर्फ्यू नाफिज है, ताहम कश्मीरी रुकावटें तोड़कर बाहर निकले। कश्मीरी निकल पड़े अपने हक के लिए, भारत से आजादी के लिए। निहत्ते अवाम ने जुम्मे को सारी पाबंदियां तक दिया है, जहां खुराक से लेकर अद्वियात तक हर चीज की किल्लत है।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मसला कश्मीर पर हुकूमत मुसलसल राब्ते में है। भारत पर दुनिया का बहुत दबाव है, पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि भारतीय हुकूमत के इक़दामात पर तशवीश है, जंग हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। ये गुफ्तगू हुई प्रोग्राम G4 गरीदा में। ट्रंप साहब से बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई, उसके बाद तैयब अर्दोगान साहब से बात हुई और बाकी अभी भी अब से कुछ देर पहले एंजेलिना मर्केल से बात हुई है जो जर्मन चांसलर हैं। तमाम रहनुमाओं से बातचीत जो है वो हो रही है और अब बड़ा मार्का जाहिर है 26 सितंबर को होगा जब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे जनरल असम्बली में खिताब करना है। सो इस वक्त अगर आप देखें तो ख़ुसूसन जो रोल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका ने अदा किया है, मेरा ख्याल है वो बड़ा मुस्तहसन रोल है, उसको हमें तारीफ़ करनी चाहिए। जो पूरा एक समझिए कि भारत को खुद फंसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि देखिए भारत के ऊपर बहुत दबाव है इस वक्त दुनिया का, और ये कहना कि इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में नहीं है ये भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है और ये हम पहले भी 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के लिए। हमने कश्मीर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं माजी में भी, और अभी भी हमारे बच्चे तो रोज़ शहीद हो रहे हैं LOC के ऊपर। तो ये पाकिस्तान पूरे का पूरा कश्मीर के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर के साथ खड़ी है, अपोजिशन कश्मीर के साथ खड़ी है। पहले भी होता रहा है, 72 साल से भी होता रहा है, बट ये रीसेंट जो एक्शंस हैं स्पेशली 370 रिपील करने के बाद से तो वो हमारे लिए जाहिर बायस कंसर्न तो है जी, लेकिन वो मेरा ख्याल है वर्बल का मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमें करना चाहिए। मसला कश्मीर पर मोदी पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ने लगा। फ्रांसीसी सदर ने मोदी से मुलाकात में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। उधर व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका सालिसी की पेशकश पर कायम है। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप की पूरी तवज्जो कश्मीर पर है और वो पेरिस में मोदी से इस मामले पर बात करेंगे। पेरिस पहुंचने पर भारतीय वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर से मुलाकात की। मैक्रोन ने मोदी पर जोर दिया कि भारत मसले कश्मीर पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मसले कश्मीर पर बोलते रहे और मोदी के मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद में कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शरीक थे। कश्मीरी भाइयों से पूरी कौम का भरपूर इज़हार यकजहती। कश्मीर यकजहती रैली में अक़लियतें भी पेश कश्मीरी भाइयों के साथ हर कदम पर खड़ा रहने का अज़्म दोहरा दिया। हम आपके एक इशारे के मुंतज़िर है। इंशाअल्लाह ये कश्मीर भाई हमारे बैक साइड पे होंगे, सबसे पहले बॉर्डर पे हम जाएंगे। अपने हर एक सिपाही के साथ खड़े हैं। हम सलामती और बका के लिए सिर्फ दुआ नहीं करते बल्कि हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कश्मीर जरूर बनेगा पाकिस्तान, गैर मुल्कियों को भी यकीन आ गया। Pakistan, Kashmir and Pakistan, Pakistan, Kashmir and Pakistan। रैली में कौमी परचम के साथ कश्मीर का परचम भी लहराया गया। अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा। भारत सुन ले, कुछ किया तो कश्मीर को भारतीय फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। सदर आजाद कश्मीर ने ऐलान कर दिया। भारत कुछ भी कर ले, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कश्मीरियों के आंसू हर पाकिस्तानी अपने दिल पर महसूस करता है। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम और मलज़ूम है। कश्मीर हमारे वजूद का हिस्सा है और जो जुल्म, जो तकलीफ, जो मसाइब और मुश्किलात कश्मीरी भुगत रहे हैं, पाकिस्तानी उन चोटों को, उन जख्मों को अपने जिस्मों पे महसूस कर रहे हैं। सदर आजाद कश्मीर ने